हे गाइस व्हाट्स अप। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स। ओके, सो जितने भी लोग इंजीनियरिंग के हैं और जितने भी लोग अपनी जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उनको डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम है, सो यू गाइस कैन चेक दिस वीडियो आउट। दिस इज़ ए कोर्स ऑन डेरिवेटिव्स जो आपको बेसिक डेरिवेटिव सिखा देगा, ठीक है। एंड जितने भी लोग इंजीनियरिंग के हैं जिनका डेरिवेटिव्स चैप्टर छूट गया है या फिर वो रिवाइज करना चाहते हैं या फिर बेसिक से भी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी वो लोग ये वीडियो देख सकते हैं। आपको बाकी जो चैप्टर्स हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, सब में डेरिवेटिव यूज़ होता है और सिर्फ मैथ्स ही नहीं फिजिक्स में भी यूज़ होता है। सो इफ़ यू want to see a chapter on derivative, this is the video for you. So let's begin. सो ये गाइस, सो शुरू करते हैं, ठीक है। सो वी आर गोना स्टार्ट द चैप्टर ऑफ डेरिवेटिव. माय नेम इज शुभजीत दास. आई एम फ्रॉम NIT Agartala. Okay, so yeah, what is the derivatives? Okay, what is it? Like what the hell it is? Okay, हम लोग थोड़ा जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में देखेंगे, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में देखेंगे, लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे और उन क्वेश्चंस में लेट्स सी हाउ well we can perform. Okay, so like let's see, let's come to the concept of derivative. Okay, instantaneous change and change in one quantity with respect to the another. Okay, let's take a rough sheet. Okay, so yeah, let's take an example of the car. Okay, so let it be a straight line. Okay, let it be a straight line. Okay, let it be a Bugatti car which can travel a distance of 10 kilometers in 10 seconds. Okay, really fast car, right? So if we were told, if we were told like to calculate the speed, तो हम speed कैसे निकालेंगे? ठीक है, we'll take the total distance and we'll divide it by the total time. Okay, so what comes? Okay, 10 kilometers by 10 seconds is 1 kilometer per second. Okay, really fast car. Okay, it basically travels ये 1 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड में जाता है. आप सोच ही सकते हो बंदे का क्या हाल होगा. ठीक है. सो लाइक 1 किलोमीटर्स पर आवर्स पर सेकेंड के स्पीड में ये कार जाता है. सो what we have calculated is we have calculated the average speed. Okay, it's not the instantaneous speed, it's the average speed. What it does means is, suppose if the car is traveling, okay, if it has 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, okay, if it has 10 seconds to travel, okay, जो कि ये करता है in 10 seconds it travels a distance of 10 kilometers. Okay, now we all know that ये हर वक्त तो सेम स्पीड में नहीं रहा होगा. Okay, it has different speeds. Okay, it travels in different speeds. Okay, for example, at t equal to 1 second it has 10 kilometers per hour. Okay, 10 kilometers per second के स्पीड में ये जाता होगा. ठीक है, in t equal to 2 seconds it travels a distance of like it gets a speed of like 20 kilometers per hour or 20 kilometers per second. The third second gets a retardation, little bit retardation, it goes to 15 kilometers per second. Okay, it travels a distance of 15 kilometers. Okay, like 15 kilometers per second, I mean. Okay, so like that is the total condition. Okay, in different time periods the car is traveling at different speeds. Okay, now what does the average speed means? ये बोलता है कि आप हर एक सेकंड में डिफरेंट स्पीड लेने के बजाय अगर आप हर सेकंड में 1 किलोमीटर का भी लेते हैं, 1 किलोमीटर मीन्स दिस वन, 1 किलोमीटर भी लेते हैं तो भी आपका डिस्टेंस वही आएगा जो कि डिफरेंट वेलोसिटीज़ लेने पे 10 सेकेंड्स में आपको मिलता है. ठीक है. सो इफ़ द कार at t equal to 1 seconds also does like 1 kilometer per second at t equal to 1 2 3 4 5 6 7 9 10. Okay, so in 10 different t equal to 10 seconds में this will make 10 kilometers.
ओके. सो बेसिकली दिस इज़ द कॉन्सेप्ट. एवरेज स्पीड टेल्स यू कि हर 1 सेकंड में डिफरेंट स्पीड लेने की बजाय हर 1 सेकंड में 1 किलोमीटर करके ले लो, तो जब 10 सेकंड आएगा तब ये 10 किलोमीटर दे देगा, जो कि ओरिजिनल में होता है. ठीक है. सो दिस बेसिकली टेल्स अस ए रफ आइडिया अबाउट द व्हाट द स्पीड ऑफ द कार वाज. ओके. रिमेंबर आई हैव अर्लियर सेड लाइक एक कार हमेशा लाइक वेरिंग स्पीड में चलता है. ठीक है. सो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, ओके, it might have a different speed at what the speed was in t equal to 2 seconds. okay. इन दोनों टाइम पीरियड में स्पीड डिफरेंट हो सकता है. ठीक है. नाउ द प्रोसेस हाउ यू कैन फाइंड आउट द एक्चुअल स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स और t इक्वल टू 1 सेकेंड, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स. ओके. मतलब डेरिवेटिव्स के थ्रू हम लोग t इक्वल टू 1 सेकेंड में क्या स्पीड था या फिर t इक्वल टू 2 सेकेंड्स में क्या डिस्टेंस उसने निकाला, तो हम लोग वो निकाल सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ओके, if we take an equation, okay, if you take an equation, for example, like a car is going, okay, and the distance which it covers is related to the time, okay, by the equation like 2t plus 4. okay. If we find the derivative, okay, if we find the derivative of it, then it becomes a velocity, right? dx by dt, it becomes a velocity. okay. When you take the derivative of it, it goes like 2 plus 0. okay. velocity becomes 2, right? ये तो एवरेज बन गया. ठीक है. ये तो टाइम के ऊपर इतना डिपेंड ही नहीं करता. अगर t इक्वल टू 2 भी है, ये t इक्वल टू 3 भी है, t इक्वल टू 4 भी है, तो भी 2 ही रहेगा. ठीक है. व्हाट डज इक्वेशन मीन्स इज इट टेल्स यू लाइक what actually the car is going to travel with. okay. The equation tells you that it gives you a way of finding out the velocity. It even gives you a way of finding out the acceleration. okay. Now the thing which you are doing right now, it is called the derivatives. okay. So आप देख रहे हो कि ये x जो है वो डिपेंड करता है t पे. okay. So that is how you can find out like the relation between two quantities. okay. Now you can see like the velocity doesn't depend on the time right now. okay. But that doesn't mean that like every time the velocity won't gonna be depend upon the time. okay. It's just for this case. okay. For example, if we take the case of this like x equal to 2t square plus 4, then in this case we can see like the velocity becomes like 4t plus 1, sorry 4t plus 0, 4t. ठीक है. सो t इक्वल टू 1 में जो वेलोसिटी होगा वो होगा 4, t इक्वल टू 2 में जो वेलोसिटी होगा वो होगा 8, t इक्वल टू 3 में जो वेलोसिटी होगा वो होगा 12. ओके. सो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जब हम t को बढ़ाते हैं तब द वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस. okay. जब हम t को बढ़ाते हैं तब the velocity also increases. this happens because of the equation if is different, then the conditions will also be different. How the conditions come? It comes by the method of differentiation. okay. So this is what like differentiation helps us to calculate the change of one variable because of the other variables. okay. So अब हम कुछ रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव्स में रूल्स कौन से अप्लाई होते हैं. ठीक है. नाउ these are some of the rules. okay. function y और fx डेरिवेटिव, अगर y को हम डेरिवेटिव लेंगे तो dy by dx होता है और fx होता है. ठीक है. इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ. y, suppose y is a function, for example it's 4x plus 2x. suppose this is a function. okay. now इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है. ठीक है. इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है dy by dx. इस y को हम डिफरेंशिएट करते हैं
x के कंपैरिजन में, ठीक है. नाउ you know about delta, okay. Delta y by delta x. Delta basically means change. Delta basically refers as change, okay. जब हम जो चेंज होता है इसको हम बहुत ही छोटा लेते हैं, सपोज वी टेंड इट टू ज़ीरो, okay. When the change is very little, then what happens, like the change occurring due to one variable to the other variable also becomes small, okay. So that's why we refer it as dy by dx, मतलब बहुत ही छोटा चेंज, ठीक है. So the way it happens is, जब हम डेरिवेटिव्स लेते हैं तब हम इसको बोलते हैं dy by dx, ओके. और हम इसको ऐसे भी रेफ़र कर सकते हैं, या फिर अगर fx जो कि फंक्शन है इसको हम फंक्शन ऐसे बोलते हैं, जो कि एक फंक्शन है, इसको हम जब डेरिवेटिव्स मतलब जब हम डिराइव करेंगे तब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है. सो these are some of the ways how you can write derivatives, okay. So some now coming to the rules of the derivatives. अगर x to the power n है, so हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n जो होता है वो सामने आ जाता है और जो n पावर होता है उससे -1 हो जाता है, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस, ओके. n x to the power n-1, ओके. सो इसको हम थोड़ा देखते हैं, x to the power n, ओके. x to the power n. सो इसको जब हम डिराइव करेंगे तब क्या होता है, तब जो n जो पावर होता है वो सामने आता है, ठीक है. सामने आ गया, हम x को लिखेंगे यहाँ पे, और जो n होता है, जो पावर होता है, पावर से 1 माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है. भैया कुछ एग्जांपल करा देते हैं भाई, एग्जांपल कुछ देखते हैं, ठीक है. सपोज इट्स गिवन एज x to the power 6, ओके. नाउ व्हाट हैपेंस इज, जो 6 होता है वो सामने आता है, सो 6 सामने आ गया. जो x होता है वो जगह पे रहता है और 6 से -1 होता है, 6 to the power 5, okay. 6x to the power 5. So this is what happens in derivatives, okay. Suppose like एक constant दिया हुआ है 6x to the power 6, so this is a constant, okay. Constant doesn't change, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता, सो हम लोग कांस्टेंट को इग्नोर मारते हैं, डायरेक्ट डेरिवेटिव हम इसका निकालते हैं. सो अगर आपके पास 6x मतलब एक कांस्टेंट सामने आता है तो हम इसको डिराइव कैसे करेंगे. आई नो दिस आर वेरी बेसिक, बट यू कैन ऑलवेज रिवाइज दिस, ओके. बहुत सूदिंग होता है आपके ब्रेन के लिए. सो when this happens, like we can write it as like x to the power 6, we can write it as this, okay. So what happens to it, into 6x to the power 5, ठीक है. जो 6 था वो सामने आ गया और इस 6 में से एक माइनस हो गया जो कि 5, हालांकि 5 के जैसे लग नहीं रहा बट फिर भी. सो आंसर क्या आ जाता है, 36 x to the power 5. So this is like what the first rule tells you, and the second rule, okay, the second rule tells you k is a constant, okay. K is a constant. derivation of dy by dx और सेम. जब हम एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे, कांस्टेंट का भी एक वेरिएबल से चेंज होगा क्या. अगर हम सपोज एक नंबर है 5, ओके. एक नंबर है 5, ओके. अगर हम टाइम इंक्रीज़ करते रहें तो क्या 5 नंबर कभी 6 हो जाएगा क्या, या फिर 6 कभी 7 हो जाएगा क्या, या फिर 7 कभी 8 हो जाएगा क्या. अगर तुम्हारे पास 500 रुपये हैं, ठीक है, अगर तुम इसको कोई बैंक या फिर मतलब सिर्फ अपने जेब में रख दो तो एक टाइम क्या वो 500-600 हो जाएगा, या फिर वो 600-700 हो जाएगा. हाँ, इन्फ्लेशन की वजह से कम ज़रूर हो सकता है,
लेकिन हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस नंबर को काउंट कर रहे हैं। क्या ये नंबर बढ़ेगा या फिर कमेगा? कभी भी कम नहीं होगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, जो कांस्टेंट होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, सो उसका जो रेट ऑफ चेंज होता है, मतलब dy/dx जो होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, सेम गोes for like the kx. I just show you this. Okay, this one basically it refers to the kx. Okay, um kx, k means constant ये था, x ये था। ठीक है, मतलब x का फंक्शन ये था। x मतलब सिर्फ x नहीं होगा, उसके ऊपर भी कुछ फंक्शंस हो सकता है। ठीक है, तो इसके कुछ और एग्जांपल करवा देते हैं यार। Suppose x to the power 5. So how we are gonna derive it? Okay, so the number comes in the front. Okay, so हम अगर डिराइवेशन करेंगे तो सिर्फ इस क्वांटिटी का करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 5 इंटू x to the power 4. So this comes as 50x to the power 4. Okay, so this is the thing. Okay, 50x to the power 4. So let's take another example. Okay, let's take another example. Okay, suppose like आपको एक क्वांटिटी दिया हुआ है, सपोज y इक्वल टू 4x to the power 2 plus 10. Okay, so if you derive it, what it comes, 4 जो होता है, ठीक है, 4 बाहर रहेगा। ठीक है, और जो डिराइवेशन हम करेंगे वो सिर्फ एक्स स्क्वायर का करेंगे। ठीक है, और फिर हम मतलब ये हम फ्यूचर रूल्स में सीखेंगे। ठीक है, जो लाइक द क्वांटिटी जो होता है, ठीक है, ये जो क्वांटिटी होता है अगर मतलब एडिशन में होता है तो डिराइवेशन लाइक दोनों का होता है। ठीक है, पहले इसका डिराइवेशन होगा फिर इसका डिराइवेशन होगा। ठीक है, इन द सेम वे अगर हम 10 का डिराइवेशन करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, राइट। तो हम dx/10 करेंगे। अब इसका मतलब क्या है पता है कि x के रिस्पेक्ट में 10 चेंज हो रहा है कि नहीं, इसका रेट ऑफ चेंज क्या है 10 का। तो ये जो नंबर है ये क्या कभी x अगर चेंज हो जाए तो ये कभी चेंज होगा? नहीं होगा ना। सो इसका लाइक रेट ऑफ चेंज क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? इसका रेट ऑफ चेंज होगा 4 जो कि बाहर था, और यहाँ जो 2 था वो सामने आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो x की पावर 2 था उस 2 से -1 हो जाएगा। सो x to the power 1। ठीक है, तो 8x। ओके, सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट लाइक kx basically defines. Okay, now when we take an example of like रूट एक्स, ठीक है, तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है? रूट एक्स का मतलब ये होता है कि एक्स टू द पावर हाफ। ठीक है, अब अगर हम इसको डेरिवेटिव करेंगे सो एक्स टू द पावर एन के फॉर्मेटिव फिर से लाओ। ठीक है, जो एन होता है वो सामने आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता, इसमें क्या होगा, जो हाफ होगा वो फिर से सामने आएगा। तो अगर ये हाफ फिर से सामने आएगा तो हाफ सामने आ गया, फिर एक्स यहाँ पे जो हाफ था इससे -1 कर दो। ठीक है, सो ये कुछ ऐसे आएगा। ऐसे आने का मतलब क्या है? ठीक है, सो ऐसे आने का मतलब है द क्वांटिटी बिकम्स लाइक दिस। ओके, हाफ क्या मतलब क्या है? रूट। और माइनस का मतलब क्या है? जो एक्स होगा वो डिनोमिनेटर में होगा। सो द आंसर बिकम्स लाइक दिस। ठीक है, सो हियर द आंसर इज रिटन लाइक दिस। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, पर आप लोग समझदार हो सो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो लेट्स अगेन डू द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर -10 का। ठीक है, जो -10 होता है वो फिर से सामने आता है, तो -10 से -1 होगा। ठीक है, जो पावर होता है उससे -1 होता है ना हमेशा। सो -10 -1। ओके, सो -10 एक्स टू द पावर -11। तो माइनस का मतलब क्या होता है कि जो x होता है वो नीचे आएगा। ठीक है, जो x होता है अगर वो नीचे आएगा तो द क्वांटिटी बिकम्स लाइक -10 बाई एक्स टू द पावर 11।
ठीक है। तो 5 नंबर अगर हम देखें तो द फिफ्थ क्वेश्चन इज एक्स, फिफ्थ क्वेश्चन इज 1/x, ठीक है। सो जो 1/x है, 1/x है, ये भी मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा। 1/x है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, x⁻⁻1, ठीक है, x⁻⁻1, ठीक है। सो अगेन लाइक -1 जो है वो सामने आ जाएगा, तो -1 x⁻⁻1, ठीक है। तो ये क्या होगा, x⁻⁻2, ठीक है। सो 1/x² माइनस में, ओके। सो दिस इज द आंसर, ओके। 1/ ठीक लिखा ना मैंने, हाँ ठीक ही लिखा भाई, कभी कभी तो मुझे भी कन्फ्यूजन हो जाता है। सो दिस इज़ लाइक व्हाट आई हैव रिटन, और जो मैंने समझाया था बिफोर, ओके। सो नाउ लेट्स गो टू सम ऑफ द फार्मूलाज। सो ये सारे डायरेक्टली याद रखने हैं। सो हाँ, इन सबको वैसे भी किया जा सकता है, ठीक है, बट इट्स प्रेफर्ड दैट इफ़ यू लाइक रिमेंबर इट डायरेक्टली। मैं तो बोलूँगा कि रट लो, ठीक है, जब क्वेश्चंस आएंगे तब डायरेक्टली आपको याद आ जाएगा, ठीक है। यू डोंट नीड टू लाइक रिमेंबर एनी ट्रिक और समथिंग, इफ़ यू कैन मेमोराइज इट देन इट विल बी बेस्ट फॉर यू, क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे ना, तब क्वेश्चंस में जब आप sin x देखोगे तब तुरंत आपको फॉर्मूला याद आना पड़ेगा, ठीक है। देन ओनली यू कैन लाइक सॉल्व द क्वेश्चन क्विकली, ठीक है। सो मेरे साथ साथ याद करते हैं, ठीक है। जो sin x का डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, cos x, ठीक है। cos x दोस्त होता है sin x का, ठीक है। तो जो sin x होगा, तो sin x जब डिराइव होगा तो वो बन जाएगा cos x। जब cos होगा वो माइनस sin x हो जाएगा। एक ट्रिक याद रख लो, थोड़ी सी ट्रिक, ठीक है। जो cos होता है, ओके, जो c से स्टार्ट होने वाले जो भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो c से स्टार्ट होने वाले जो भी फंक्शंस होते हैं, उनमें जो डिराइवेशन होता है वो हमेशा माइनस में होता है, ठीक है। जो cos आएगा वो माइनस sin x हो जाएगा, जो cot x होगा वो माइनस cos x² हो जाएगा, जो cos x होगा जो, तो वो माइनस cos x cot x हो जाएगा, ठीक है। सो द sin x becomes cos x, द cos x becomes minus sin x, the tan x becomes sec square x, the cot x become minus cos x square x, the cosec x becomes minus cos x cot x, the sec x becomes the sec x tan x, and the x square becomes x square। सॉरी, ये वाला मुझे समझाना पड़ेगा थोड़ा। जो e टू द पावर x होता है, ठीक है, जो e टू द पावर x होता है उसको, वो है गैंगस्टर, ठीक है। उसको किसी की भी चिंता नहीं है, किसी की भी परवाह नहीं है, ठीक है। ये ठहरा एक आदमी जो बैठा हुआ है, ठीक है, ये ओपनली बोलता है कि हाँ जो करना है कर लो, मुझे इंटीग्रेट कर लो, मुझे डिफरेंशिएट कर लो, मैं तो हिलूंगा भी नहीं, ठीक है। तो e टू द पावर x को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तब वो e टू द पावर x ही रहता है, ठीक है। सेम नहीं, अगर हम a टू द पावर x को लेते हैं तो a टू द पावर x बेसिकली a टू द पावर x log x बन जाता है। जब हम log x को लेते हैं तब हम 1/x बन जाता है। अब ये पूछ सकते हो कि 1/x क्यों बनता है, ठीक है। इसको तो हम नॉर्मली ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 1/x को करोगे तब ये बन जाता है लाइक दिस, ओके। सो ये बन जाता है लाइक दिस, ओके। सो ये आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली याद रखो, ठीक है। log x का जो डेरिवेटिव होता है वो है 1/x, ठीक है। नाउ सम ऑफ द रूल्स ऑफ द डिफरेंशिएशन, जो कि मैंने पहले बताया था कि मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सो सम ऑफ द रूल्स ऑफ द डेरिवेशन, d/dx, अगर हम u प्लस v अगर एडिशन होता है तब जो d/dx होता है वो पहले u में जाएगा फिर वो v में जाएगा, ठीक है। पहले हम u को डिफरेंशिएट करेंगे फिर हम v को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम u को डिफरेंशिएट करेंगे फिर हम v को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सम ऑफ द एग्जांपल्स, ठीक है। सपोज लेट्स टेक दिस एग्जांपल, ओके। सो इसको थोड़ा रब कर लेते हैं,
ये क्या हो गया, हाँ इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, डी डी एक्स 10x + 2x, x + 2x। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तब डिफरेंशिएशन पहले इसमें जाएगा फिर इसमें, ठीक है ठीक है। जो 10x होता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, आप एक काम कर लो, आप पिछले वाले पेज में जाओ, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सीख लो, ठीक है। जो फॉर्मूलाज होता है, जो sin x का फॉर्मूला होता है, जो cos x का फॉर्मूला होता है, जो tan x का फॉर्मूला होता है, जो cosec x का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो cot x का फॉर्मूला होता है, आप बेसिकली ये सारे फॉर्मूले सीख लो, ठीक है। अगर आप सीख लोगे तो आप डायरेक्टली ऐसे पुट कर सकोगे। जैसे 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec²x, ठीक है। ये मुझे कैसे याद है, क्योंकि आई मेमोराइज्ड इट, ओके। डायरेक्टली बोलता हूँ, ठीक है। ये जो डेरिवेटिव है, ठीक है, ये जो 10x है, आप इसको डायरेक्टली कैसे लिखोगे, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कैसे करोगे, बाय मेमोराइजिंग इट, ठीक है। हाँ, इसको फर्दर भी हम लोग डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको 5 से 10 मिनट लग जाएगा, ठीक है। क्या आप ये चाहते हो आपके एग्ज़ाम में, आप नहीं चाहते हैं ना, या फिर आपके कॉन्सेप्ट्स में कोई कमी ना रहे ना, तो मैं एक काम करूँगा, मैं जो ये सारे फंक्शंस होते हैं उसका मैं सेपरेट एक कोर्स बना के, मतलब सेपरेट एक वीडियो बना के मैं दिखा दूँगा कि ये सब कैसे डिफरेंशिएट होते हैं। बट अभी के लिए आप इन सबको लाइक मेमोराइज़ कर लो ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ठीक है। सो जो 10x होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, उसका डेरिवेटिव है sec² x + 2x। This is the answer, okay। So yes, this is the answer, this is the way how you can do it, okay। This is one of the example, and like let's take another example, okay। So this is another example, ddx of sin x minus log x, okay। So when you take the differentiation of sin x minus log x, let's see it how you can do it, okay। sin x minus log x, so when you try to do it, okay। So आप, मैंने क्या बोला था, जो डेरिवेटिव होता है वो पहले sin x में जाएगा और फिर जो डेरिवेटिव होता है वो उसके बाद log x में जाएगा। So when it goes to the sin x, then it becomes like d dx sin x minus d dx log x। when it goes to d dx sin x, what it becomes, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x minus d dx log x means 1/x, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ठीक है, cos x minus 1/x, ठीक है। सेम अगर हम माइनस की बात करें, ठीक है, जब सब्ट्रैक्शन होने वाला होता है तब सब्ट्रैक्शन के वक्त क्या होता है, जो सब्ट्रैक्शन होने वाला है, सो पहले डेरिवेटिव u में जाएगा फिर डेरिवेटिव v में जाएगा, सेम है इसकी तरह ही सेम है, सिर्फ जो u होता है वह x होता है वो माइनस होता है dv/dx से, ठीक है। जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है वैसी फॉर्मेट में है, अगर पॉजिटिव है मिडिल में तो मिडिल में पॉजिटिव होगा, माइनस है तो माइनस होगा, ठीक है। पहले डेरिवेटिव इसमें जाएगा फिर डेरिवेटिव इसमें जाएगा। सपोज कि x + y + v है ना, तो डेरिवेटिव पहले इसमें जाएगा इसमें जाएगा इसमें जाएगा और बीच में प्लस होंगे। अगर x - y + v है तो पहले डेरिवेटिव इसमें जाएगा माइनस dy/dx प्लस dv/dx, ठीक है, ऐसे होंगे, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल्स मैंने समझा दिए, ठीक है। चेन रूल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है, डिटेल्स में होगा। सो डोंट वरी, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ओके। जस्ट कूल योर ब्रेन एंड कम, एंड जो करना है ना वो यहाँ पे ही कर लो, ठीक है, ताकि घर पे जाके मतलब वीडियो बंद करने के बाद कोई प्रैक्टिस ना करना पड़े। हाँ, ये फार्मूले ज़रूर से सीख लेना, दीज फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर फार्मूला सीख लोगे ना, ये सारे अगर फार्मूला सीख लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।